So children, now you all can see that yesterday we had done atomicity. What is the meaning of atomicity? Atomicity will tell you that how much atoms will be needed to make the single molecule of that particular element. For example, if I am talking about the carbon, or I am talking about the oxygen, okay, then how many oxygen atoms are needed for the oxygen to be exist? ऑक्सीजन की तरह एग्जिस्ट करना चाहता है, उसके लिए उसको अपने जैसे कितने एटम्स के साथ कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा. दिस इंफॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज एटोमिसिटी. ठीक है. सो द एटोमिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन विल बी 2, द एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 2, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज 4 एंड द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज 8. बात समझ में आ गई? चलो, तो ये टॉपिक हमारा कल हो गया था. Now we are going to be moving ahead. Today we are going to start valency. Chemical formula. How the chemical formula will be written. Children, all the children, please see in your textbook. Okay, first of all, let me write it down, the topic which we are going to start today. That was the chemical formula. Chemical formula. Chemical formula. Okay. Now see children, whatever we have studied till now, that how the chemicals have to be represented. हमें केमिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, what tools we use to be considered to represent the elements or atoms, they will be used right now. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग केमिकल्स का यूज करने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं. Now these alphabets will ultimately help us to write down the chemical formula. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? All of you now please see in your textbook. All the children please see in your textbook. Just as an element can be represented by a symbol, a chemical compound can be represented by its chemical formula. जैसे कि हम केमिकल्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, as we are representing the chemicals with the help of symbol, in the same way we will represent the different constituents of the chemical of a substance with the help of chemical formula. ठीक है. The representation of a molecule of a compound using chemical symbol of its constituent element is called a chemical formula. तो बच्चों, केमिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बल्कि केमिकल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपने जिस केमिकल को लिया है उस केमिकल में कितने एटम हैं, कौन कौन से एटम हैं और कितने एटम हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट वाटर. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर विल बी H2O. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर विल बी H2O. चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, H2O. ठीक है. नाउ दिस केमिकल फॉर्मूला is giving you the information about the water. You are getting the information about the water, that how much hydrogen and how much oxygen are going to be combined. First of all, what was the name of the chemicals, those who are going to be combined, those who are going to be made of this water. ठीक है. आज का ये 24 जून, ये पूरे जून का है. ये हैं जिन्होंने कभी अटेंड नहीं किया. ठीक है. बाकी सब तो कुछ चल रहा है, आगे भी तो चल रहा है बाकी सबका. बाकी इनका सब हाँ देखा.
हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हेलो, यस चिल्ड्रन। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे कंफर्म कर दो सो दैट द लेक्चर विल बी कंटिन्यू। Yes sir, your voice is coming. Yes sir. Yes sir. ठीक है, बोर्ड दिख रहा है साफ साफ? क्लियर है बोर्ड? Yes sir. ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। केमिकल फॉर्मूला विल गिव यू द टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। केमिकल फॉर्मूला विल टेल यू दैट हाउ what was the name of the chemical which combined together to make the element। मेरे पास कुछ मटेरियल है, उस मटेरियल को बनाने के लिए कितने केमिकल्स ने पार्टिसिपेट किया और उन केमिकल्स के कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर के वाटर को बनाया। तो वाटर वाज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट हाउ मच हाइड्रोजन, how much oxygen, how much atom of hydrogen and how much atom of oxygen combined together to make the single molecule of water। वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होते हैं। ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली? बिकॉज ऑफ द केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला विल टेल यू अबाउट the chemical which was being used to make the material and how much atoms has been used to make it। Clear हो गया? All of you now please see some of the examples are given here। Chemical formula of some compound: name, formula, water H2O, common salt NaCl, hydrochloric acid HCl, calcium carbonate CaCO3। Let me take the example of CaCO3। All of you please see on the board CaCO3। This is telling you about the calcium, this is telling you about the carbon and this is telling you about the oxygen। Means कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हमने 3 तरह के केमिकल्स का यूज किया है, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, all the 3 elements have combined together to make a compound that was calcium carbonate। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स का हमने यूज किया है टू मेक द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का आया ना? Yes sir, समझ आ गया। Yes sir। Okay now, so let's have a move on। Okay बच्चों, the chemical formula of a compound can be derived if we know the constituent elements and their symbols and the valency of the elements। Let us now see what valency means। Now children, we are going to start next topic, that was the valency। देखो मैं केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर मिटा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी में मैं केमिकल फॉर्मूला का यूज करूंगा। ठीक है ना? वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम of an element is called valency। The valency of some common element is given in table 4.4। देखो बच्चों, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वैलेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में उसको बता दिया है कि वैलेंसी क्या होता है। तो बच्चों देखो, सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैलेंसी को आप ये मानो कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वैलेंसी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि यू ऑल कैन सी इन योर टेबल ऑल्सो, टेबल 4.4, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 4, ऑक्सीजन का 2, क्लोरीन का 1 है, पोटेशियम का 1, आयरन का 2 या 3। ठीक है ना? तो ये वैलेंसी कहां से आती है, इसका सोर्स क्या है? बच्चों
देखो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ केमिकल, हमारे अर्थ पे जितने भी केमिकल्स हैं सभी केमिकल के एटम आपस में सेटिस्फाई होना चाहते हैं। दे ऑल वांट टू सेटिस्फाई, दे ऑल वांट टू फुलफिल देमसेल्फ। वो सभी अपने अपने लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन होने के लिए उनके अंदर कुछ होना चाहिए। Sir, your voice is not coming. वो बेटा फोन आ गया था, इससे डिस्टर्बेंस हो गया। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? चलो बच्चों शॉर्ट में अभी आप ये समझो, एज पर योर टेक्स्ट बुक, कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कौन सा एटम कितने से कंबाइन होगा, विच एटम विल कंबाइन to how many other atoms of its own type or the other atoms of other elements, other chemicals या other atoms के साथ वो कितने atoms के साथ combine होगा, that will be called as its valency। तो मैं क्या बोलूंगा, वैलेंसी। बेटा अभी 7th स्टैंडर्ड लेवल पे आप लोग अभी फिलहाल वैलेंसी को लर्न कर लो, ठीक है। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 1, पोटेशियम का 1, आयरन 2 and 3, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम। Sir, how can we get to know that name of an unknown chemical has how many valency? How can we know that immediately? बेटा देखो वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है और अभी सिलेबस में आपके दिया नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं दिया मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप जानो उसके बारे में। इसका एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल सेक्शन, स्टैंडर्ड 8 में आएगा आप लोगों के पास। वैलेंसी क्या होती है, इसका एक स्मॉल सेक्शन स्टैंडर्ड 8 में आएगा। या चलो लास्ट में अगर टाइम मिलेगा ना मुझे तो मैं आपको बता दूंगा कि वैलेंसी काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अभी आप ये समझ जाओ बच्चों कि कोई भी एटम कितने और एटम से कंबाइन होगा अपने जैसे या किसी और के, अपने जैसे या किसी और के एटम के साथ कंबाइन होने की वजह से वो अपने, क्या बोला मैंने, आप एक तो पुराना रजिस्टर है ना आपके पास, इसमें तो संभाल के देख सकते हैं, फिर अलग अलग कागज आपको संभाल रहे। पुराना रजिस्टर होगा ना आपके साथ, हाँ इसमें ओल्ड रजिस्टर में पीछे बेटा जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ ओके बेटा, तो चलो ठीक है बच्चों, सिलेबस फिनिश होने के बाद लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को बता भी दूंगा कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं मैं, और आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है। चलो बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लो कि अगर आपको वैलेंसी मालूम है ना, अगर आप जानते हो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो हाउ द वैलेंसी विल हेल्प यू टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला।
वैलेंसी की हेल्प से आप केमिकल फॉर्मूला कैसे मालूम करोगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। नाउ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, then how the valency will help me? All of you please see, follow the steps given below to write the chemical formula of a chemical compound. Write down the symbol of a constituent element. Write down the symbol of the constituent element. चलो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो यहां पर दिया हुआ है आपकी बुक में। चलो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के एग्जांपल मैं ले लेता हूं। द फर्स्ट नंबर आई विल राइट डाउन द सिंबल ऑफ द केमिकल विच वॉज बीइंग यूज्ड। चलो बच्चों, ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द बोर्ड, सभी लोग बोर्ड पे देखो। देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। चलो भाई, मैं वाटर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ वाटर, आई नो दैट द वाटर विल बी मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को किसने बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बनाया। लेकिन वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मुझे ये नहीं मालूम बेटा। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वाटर को H2O कहते हैं, ये आपको नहीं मालूम। वाटर को H2O कहा जाता है, ये आपको नहीं मालूम। यू डोंट नो अबाउट द H2O। यू नो ओनली वन थिंग, दैट हाइड्रोजन इज हैविंग इट्स वैलेंसी 1, ऑक्सीजन इज हैविंग इट्स वैलेंसी 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट। Yes everyone, हाँ बेटा, हेलो, ओके, yes children, so we are talking about this one. Yes, I don't know about the H2O, but I know that the valency of hydrogen is 1 and the valency of oxygen is 2. ठीक है, मतलब मुझे वाटर को बनाने वाले केमिकल्स के नाम मालूम है। वाटर को बनाने वाले जो केमिकल वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों के बारे में मुझे पता है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के H2O कहते हैं, मुझे ये नहीं मालूम। H2O क्या है? केमिकल फॉर्मूला। H2O इज द केमिकल फॉर्मूला। भाई केमिकल फॉर्मूला मैं बनाना सीख रहा हूं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि राइट डाउन द नेम ऑफ द केमिकल, राइट डाउन द सिंबल ऑफ द केमिकल विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर को कौन कौन बनाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। नाउ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। अब क्या काम करना है बेटा? आपको क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन में। मतलब ये यहां से जाएगा यहां पे और ये यहां से जाएगा यहां पे। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है,
So the valency of oxygen will go in the hydrogen and the valency of hydrogen will go in the oxygen. तो बच्चों अब आप लोग तो जानते ही हो, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, यू ऑल नो अबाउट दिस कि 1 को आप लिखो या ना लिखो वो चलता है। कहीं पर भी अगर आपने 1 नहीं लिखा है मतलब ऑलरेडी वहां पे 1 लिखा हुआ है। 1 इज नॉट नीडेड टू बी एक्सप्रेस। कहीं भी अगर आपको 1 लिखना हो तो आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वहां पे खाली है मतलब वहां पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H के साथ 2 आ जाएगा और O के साथ 1 आ जाएगा। What will be the formula? H2O1. तो O के साथ 1 आप लिखो या ना लिखो, that's okay. So this is the chemical formula of water. बात समझ में आई? क्लियर हो गया सभी को? लेकिन बच्चों ये चीजें आप कब कर पाओगे? This thing you all would be able to do only when you all know about the valency. अगर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी के बारे में मालूम है, if you know about the valency of hydrogen, if you know about the valency of oxygen, then and then you would be able to do it. तो अभी बच्चों हमने आपको एक टेबल में कुछ केमिकल्स के नाम दिए हैं और हमने उनकी वैलेंसीज आपको दी है लर्न अप करने के लिए। अभी आप लोग उतना ही लर्न करो, आगे चल के इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी बेटा एक बहुत बड़ा थिंग है समझने के लिए। If you want to understand the valency, अगर आप वैलेंसी को समझना चाहते हो, then you have to, आपको और भी कई चीजें जाननी पड़ेंगी, वो यहाँ पे दी नहीं। टॉपिक दे दिया है वैलेंसी, तो बताओ मैं आपको कैसे समझाऊं। पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर मुझे समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर ऑर्बिट कैसा होता है, उसके बाद इसका क्या बोलते हैं फुल दैट वाज मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जब भर जाते हैं वो कंडीशन क्या होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरते तो वो कंडीशन क्या होती है, हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड स्टेट। हाफ फिल्ड स्टेट क्या होती है, फुल फिल्ड स्टेट क्या होती है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही नहीं, और टॉपिक लिख दिया है वैलेंसी। तो फॉर राइट नाउ फॉर योर 7th स्टैंडर्ड इट्स बेटर टू लर्न द वैलेंसी rather than अंडरस्टैंड। इसको अंडरस्टैंड मत करो, वैलेंसी को लर्न करो, ठीक है। चलो इन दोनों की वैलेंसी हमने लर्न कर ली थी, तो हमने इसका केमिकल फॉर्मूला निकाल लिया। चलो CO2 का देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एज फार एज द कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसर्न, नाउ एज पर द नेम ऑफ द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, आई नो दैट I don't know about CO2. I don't know about this CO2. I have to find it out. Whether in the carbon dioxide, how much atoms of carbon and how much atom of oxygen are going to be combined with each other. Okay, children? Now, C and O. In the carbon dioxide, the chemical which will be combined together to make carbon dioxide, that was carbon and oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2। ठीक है। देखने में Z लग रहा है, देखिए Z नहीं है, ये 2 है। ओके सर। अब ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की 2। अब आपको वही करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां जाएगी कार्बन के पास, और कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास जाएगी। तो क्या होगा फॉर्मूला, C2O4, सही है ना, C2O4, C2O4। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा CO2। सही है, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। चलो
नाउ चिल्ड्रन लेट्स हैव अ मूव एहेड। No sir, no अब doubt. आगे बढ़ते हैं। चलो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक में दिया क्या है। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला ऑन द पेज नंबर 54, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट। Follow the steps given below to write the chemical formula of a chemical compound. Write down the symbol of the constituent element. Write down the valencies of the element. Cross over the valencies and write them as subscripts. If the valency is divisible by a common number, then divide and simplify the formula. जो अभी मैंने किया CO2 के केस में, CO2 का फॉर्मूला क्या था? CO2 नहीं था, C2O4 था, है ना? तो C2O4 को मैंने कट कर दिया 2 से, क्या बन गया? CO2 बन गया। Now C2O4 is not the chemical formula of carbon dioxide, but CO2 is the chemical formula of carbon dioxide. ठीक है? If the valency is divisible by common number, then divide and simplify the formula. Keeping in mind these steps, let us write down the chemical formula of some compound. चलो बच्चों, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब इनके तरीके को आप मत देखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? बोर्ड पे जो मैंने आपको समझाया है जिस बेस्ट वे, उसको आप लर्न अप कर लो, उसको आप याद कर लो। सबसे पहले आपको किसी भी केमिकल को बनाने वाले केमिकल्स के सिंबल को लिखना है। ठीक, सिंबल को आपको लिखना है वहां पर। सिंबल को लिखने के बाद सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है। सिंबल लिखने के बाद उनकी वैलेंसीज लिखनी है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक दूसरे की वैलेंसी वो इंटरचेंज कर लेंगे and then after the formula will be visible to me. Okay children, चलो बच्चों, all of you now come on the next topic, chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं बच्चों? चलो इसके बारे में हम जानते हैं। Chemical equations, all of you now please come on the page number 55, chemical equation. Let me write it down, the topic on the board. बेटा मेरी आवाज नहीं आएगी तो मुझे बताना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोग को मिल रही है। Okay sir. चल, नाउ केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होती हैं भाई? केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो काफी इंटरेस्टिंग है बेटा। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस। चलो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं हम। ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 55. Chemical equations, a chemical equation is the shortened form of representing a chemical reaction using symbols and formula. बच्चों पहली चीज तो अपने दिमाग में आप इस बात को अच्छे से डाल लीजिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल फॉर्मूला will tell you about how much, how many and what chemicals and how many chemicals have been used to make a compound. कंपाउंड को बनाने के लिए आपने किन केमिकल्स का यूज किया है और कितने का यूज किया है। जैसे कि H2O, वाटर बनाने के लिए आपने
H और O का यूज किया है, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया है। तो हाइड्रोजन का कितना यूज किया? 2। ऑक्सीजन का कितना यूज किया? 1। कैसे मालूम चला आपको? केमिकल फॉर्मूला से। केमिकल फॉर्मूला विल टेल यू। केमिकल इक्वेशन क्या होती है चिल्ड्रन? प्लीज रिमेंबर, केमिकल इक्वेशन will tell you about the chemical reaction which had taken place inside the material. किसी मटेरियल के अंदर, किसी केमिकल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये दो केमिकल्स थे, इन दोनों केमिकल्स को मैंने साथ में डाल दिया, तो जब ये साथ में आ गए तो कुछ और बन गया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस में एक एरो आ जाएगा, यहां पर एक एरो आएगा। देखो यहां पे एक मैं एरो लगाऊंगा, यहां पर क्या होगा? रिएक्टेंट। क्या होगा? यहां पे रिएक्टेंट होगा, और यहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट। ऑलवेज यहां पर what chemicals I had chosen for the reaction to be occur, रिएक्शन को होने के लिए मैंने किन केमिकल्स को चूज किया, वो यहां पे आएगा LHS में, और इनके साथ में आने की वजह से कंबाइन होकर के क्या बन गया, दैट वाज द प्रोडक्ट। इसी को मैं क्या बोलता हूं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपको बताएगी कि आपने जिन केमिकल्स को चूज किया था, उस केमिकल में कौन सा केमिकल कितना था और वो कहां पर था, और जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में, ये जो प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट में कौन कहां पर जा रहा है? यहां पर कोई एलिमेंट था या कोई कंपाउंड था, वो इतना था, अब यहां पर वो कितना रह गया, यहां पर वो किस फॉर्म में था, अब यहां पर वो किस फॉर्म में होगा। दिस ऑल थिंग्स विल बी विजिबल टू यू विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हाँ या ना? नो सर। यस सर। नो, नहीं आ रही? हरमन, नहीं आया? नो सर। सर थोड़ा पढ़ लेते हैं, आ जाएगा अभी। All of you, now please come on the page number 55. A chemical equation is the shorthand form of representing a chemical reaction using symbols and formula. Chemical reaction involves the conversion of certain chemical substances into some other chemical substances. The element compounds involved initially in the reaction are called reactant, and the new element compound forms are called product. अरमान, पढ़ा आपने? यस जिन सर। केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो नया केमिकल बनता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। द केमिकल between or among whom reaction had taken place, these chemicals will be called as a reactant, and the new product which was being made due to the reaction, that product will be called as a, or that substance will be called as a product. ठीक है? ओके सर। नहीं बेटा, अभी ओके नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं। जब तक मैं कोई केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा नहीं ना वहां पे बोर्ड पे, लिख करके आपको समझाऊंगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। आई नो इट, चिंता मत करो, समझाता हूं। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं? देखो तो, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन।
Identify the reactants and the products of the chemical reaction. Chemical reaction में यूज होने वाले केमिकल्स को आप आइडेंटिफाई कर लो और उन केमिकल्स के सिंबल्स को आप यूज करोगे. जैसे कि ऑक्सीजन है, यू विल नॉट यूज ऑक्सीजन, you will use only O. You will not use nitrogen, you will use N. Okay, O, N, Mn, Au, Ag, C. These are the symbols of different chemicals which will be used while we will write it down the chemical reaction, the chemical equation. Okay, so you have to always use the symbol of the reactant. As a result, we will get the result as a product. Okay? Write the names of the reactants. Write the names of the reactants. Write the names of the reactants on the left hand side with a plus sign between them. मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं. मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट नंबर 1 एंड रिएक्टेंट नंबर 2. तो दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा? मैं प्लस का साइन यूज करूंगा. बच्चों, जस्ट आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक केमिकल इक्वेशन बोर्ड पे लिख रहा हूं. ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी. अभी आप बहुत ज्यादा इसके डिटेल में मत जाना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. ठीक है, देखिए, Na is the symbol of sodium. Na is the symbol of sodium plus Cl is the symbol of chlorine. तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के बीच में क्या हुआ? रिएक्शन हो गया. तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. नाम सुना है पहले कभी इसका? ये क्या है मालूम है आप लोग को? NaCl. सर नहीं पता. व्हाट इज NaCl? अरे बच्चों, आप लोग इसको अपने घर में यूज करते हो, बिना इसके काम नहीं चलेगा किसी का भी. कॉमन सॉल्ट. Yes, common salt. Common salt. Generally, in Gujarati, we used to say michu. Okay? Okay, sir. Yes, sir. So it is called NaCl? बिल्कुल, NaCl. वही NaCl को आप खाते हो ना, बोलते हो मम्मी स्वाद नहीं आ रहा, लगता है आपने मिठू लगता है आपने सॉल्ट कम डाला है. तो आप सॉल्ट लेते हो और डालते हो उसको, तो जो गिरता है ना वाइट वाइट दाने दाने, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, तो वो क्या खाते हो आप? NaCl है वो, सोडियम क्लोराइड. द सैंपल हैज बीन टेकन एज द सोडियम प्लस क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन इन दोनों को मैंने लिया, बना क्या? सोडियम क्लोराइड. सोडियम एंड द क्लोरीन एज पर द रूल, अभी जो हमने रूल पढ़ा है, एज पर द रूल व्हेन द रिएक्टेंट बिटवीन द रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आप क्या लगाओगे? प्लस साइन लगाओगे. बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स आई विल ऑलवेज यूज द साइन ऑफ प्लस. दिख रहा है सभी को? दो रिएक्टेंट्स के बीच में आई विल ऑलवेज यूज द साइन ऑफ प्लस. ओके, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द एरो. एज कंपेयर टू दिस एरो, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड and this is the right hand side. The left hand side will always have the reactant. The left hand side will always have the reactant, whereas the right hand side will have the product. When the left hand side reactants will combine together, then ultimately what product will be formed? That will be written on right hand side. That was NaCl, sodium chloride. ठीक है? नेक्स्ट रूल देखिए. पहला तो आपने देख लिया कि आपको सिंबल का यूज करना है. नेक्स्ट नंबर, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन का यूज करना है. ओके. थर्ड नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड विथ
plus sign between them, place an arrow between the two sides with the arrow head pointing towards product, that is between reactants and the product. This equation is called Ward equation. क्या बोलते हैं हम इसको? Ward equation. चलो बच्चों, all of you now please see on the board. Right now we have taken the sodium and chlorine as a reactant. Just now I have taken the sodium and chlorine as a reactant. Okay. Now sometimes it happens that when they both will get combined together, then the product will also be 2. Right now अभी आपको यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा होगा, लेकिन कई बार कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जहां पर रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं, दो रिएक्टेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट कोई एक नहीं बनता, कई बार 2 बन जाते हैं. ठीक है ना? तो अगर मान लो प्रोडक्ट एक से ज्यादा हुआ, if the product will be more than 1, then between the product also I will use the plus sign. मान लो यहाँ पे NaCl के अलावा कुछ और बन गया होता, NaCl और इसके साथ में कुछ और बन गया होता. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो X बन गया, NaCl plus X, NaCl plus X. तो रिएक्टेंट में क्या था? In the reactant I was having the 2 chemicals. In the product also the 2 chemicals I have got the 2 chemicals. In the reactant I have used plus between the 2 reactants. Between the 2 reactants I had used plus sign. So after the reaction, between the 2 products which I have got, I will use plus sign. बात समझ में आ गई? All of you. बेटा X आया नहीं है, जस्ट एज एग्जाम्पल मैंने लिखा है वहां पर कि मान लो अगर कभी कोई ऐसा केमिकल आता है, मान लो NaCl की जगह आपने कोई और केमिकल ले लिया यहाँ पर, और इन दोनों के रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बन जाएंगे, तो दोनों के बीच में आप क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे. Sir, we cannot add. ठीक है? All of you please put off your mic. किसी का माइक ऑन है? Sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, if we write Cl plus Na after we go make the product consonant Cl Na, it will be wrong. बेटा रुक जाओ, तो पहले ये जो आवाज आ रही है ना, रुको मैं पहले देखो क्या आवाज आई है. रोज रोज बोलना पड़ता है, माइक ऑन हो जाता है, मालूम नहीं चलता कि माइक ऑन हो गया है. जील मकासना. हाँ यस हरमन बोलो. Sir, if we add chlorine plus sodium, so after we get the product that Cl plus is equal to Cl Na, so it will be wrong, na sir? हाँ बेटा, Cl और Na अगर मैं लगा दूंगा नहीं तो भी रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा. Sir, how? जनरली बेटा देखो, इसका जो नाम है, क्या नाम रखा है हम लोगों ने उसका प्रोडक्ट का? द नेम ऑफ द प्रोडक्ट वाज सोडियम क्लोराइड. म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, म्यूट करो. What name I had given? The name which has been given to it, that was sodium chloride. अब ये नाम साइंटिस्टों ने दे रखा है पहले से. अगर आप इसको सोडियम क्लोराइड की जगह क्लोराइड सोडियम लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, इशू नहीं होगा, आप आगे पीछे कर सकते हो. बट बी रिमेंबर्ड देयर आइडेंटिटीज शुड बी कैरीड.
अब यहाँ पर क्या था, अब आप लोग लकी हो कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कहाँ पे 1 आएगा कहाँ पे 2 आएगा, इसका टेंशन नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैलेंसीज क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, आप क्रॉस करोगे, इसकी वैलेंसी यहाँ जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पे आएगी, तो अल्टीमेटली में आएगा क्या, 1 1 आएगा। तो 1 1 आएगा, तो ये हमने ये लिख तो दिया हमने यहाँ पे 1 1, कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब वहां पे 1 लिखा हुआ है। अगर कुछ भी वहां पे नहीं लिखा मतलब 1 लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें आपको नंबर्स तो काफी ज्यादा सेव कर, मतलब किस केमिकल के कितने एटम्स यूज हुए हैं उसको कैरी करना होता है। तो जनरली उसका जो नाम है, जो नाम हमने दिया है ना, तो नाम के अकॉर्डिंग ही हम केमिकल का नाम, केमिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड, अब मैं इसको लिख दूं क्लोराइड सोडियम, मतलब नाम लिखा हुआ है क्लोराइड सोडियम, और उसको बोलूंगा कि यह है आपका सोडियम क्लोराइड, तो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। इसीलिए मतलब ये चलन में है बेटा, चलन में है। NaCl नाम लिखना ये चलन में है। अगर आप इसको Cl Na लिखते हो तो रॉन्ग नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, आगे देखो, replace the names of the product and their with symbol and formula. This gives the chemical equation. Make sure that the number of atoms of each element on both sides is equal. This is called balancing the equation. अब इक्वेशन को बैलेंसिंग करना का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंसिंग द इक्वेशन। देखो बच्चों, ये टॉपिक इसमें आप लोगों के टेक्स्ट बुक में काफी ज्यादा एलाबोरेट करके आपको समझाया है, और टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसीलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। देखो, बैलेंसिंग एन इक्वेशन क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ कि केमिकल इक्वेशन समझ में आया जो बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. All of you please reply. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। ठीक, अब इस केमिकल इक्वेशन को whenever we are writing down the chemical equation, at that time we are balancing the number of atoms. नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस करते हैं। जितना LHS में था उतना ही RHS में भी आएगा, किसी में भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे करते हैं देखो, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को मैंने यूज किया। भाई मैग्नीशियम इज द केमिकल, उस केमिकल की जगह मैंने केमिकल सिंबल का यूज किया है Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दे बोथ हैव कंबाइंड टुगेदर टू मेक MgO। सही है, chemical formula which I have written, it's right? Tell me. Now, just now we all have come to know that how the chemical formula should be written down. Chemical formula मुझे किस तरह से लिखना चाहिए? सही है? We all know that the valency of oxygen will be 2. No, sir. इसके नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए था? 2 लिखना चाहिए था। और मैग्नीशियम के नीचे, भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2।
ये 2 वहां पे जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 2 कट जाएंगे, बचेगा कितना? MgO। ठीक है, चलो चलो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? Mg2, और ये 2 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? Mg2 और O4, 2 1 2 2 4, तो MgO2। Sorry, your voice is not coming. बेटा 1 मिनट। ओके, देखो बच्चों, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने जितने केमिकल्स यहां पर लिए हैं उतने ही केमिकल्स वहां पे भी लो। जितने केमिकल्स आपने यहां पर लिए हैं, LHS में लिए हैं, उतने ही केमिकल्स आप RHS में भी लो। ठीक है, तो एज पर द रूल, अभी अभी हम लोगों ने जाना केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बच्चों, ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर नाउ, जस्ट नाउ यू ऑल हैव कम टू नो दैट हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, यहां पे लिख दीजिए। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, तो यहां पे लिख दीजिए। 2 यहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Mg2, और ये 2 यहां पर जाएगा, कितना बन जाएगा? O4। सही है? सही है कि नहीं? सर, और कैसे बना? Yes. क्योंकि बेटा यहां पर 2 था, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, ये 2 जब यहां पर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर मैग्नीशियम के पास पहले से 1 था और ऑक्सीजन के पास 2 था, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नाउ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विल बी 2। नाउ दिस 2 विल गो देयर एंड मल्टीप्लाई, एंड दिस 2 विल कम हियर एंड मल्टीप्लाई, देन द रिजल्ट विल बी Mg2O4। बेटा जस्ट अ मिनट। हाँ मैम बोलिए, कोमल मैम। ओके ओके, हाँ बेटा, ठीक है। तो क्या होता है? क्रॉस होता है, ये 2 यहां पर जाएगा और ये 2 यहां पर जाएगा। ये 2 जब यहां से यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, और ये जब यहां पर जाएगा तो कितना होगा? 2। नाउ आप लोगों ने एक और रूल पढ़ा है, अगर ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड भी कर देना। पढ़ा है ना आप लोगों ने अभी अभी? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना? MgO2। MgO2 should be the right chemical formula. MgO2 should be the right chemical formula. MgO2 should be the right chemical formula. लेकिन मुझे नंबर ऑफ एटम्स तो दोनों तरफ बैलेंस करना है। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैंने मैग्नीशियम का एक एटम यूज किया है, तो यहां पर भी मैग्नीशियम का एक ही एटम होना चाहिए। यहां पर अगर मैंने 2 यूज किया है तो 2 होना चाहिए।
ठीक है, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को मैंने लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि LHS में जितने भी केमिकल्स हैं उतने ही केमिकल्स RHS में भी होने चाहिए। बच्चों मुझे पहले साफ साफ ये बताओ, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो ना बोलो, आया है तो हाँ बोलो, साफ साफ क्लियर। सर आया। यस सर, यस सर। बोलो बेटा। सर जैसे Mg में अगर उसकी वैलेंसी 1 है तो हमें वो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 1 करनी होगी ना? नहीं नहीं बेटा, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। बेटा चिंता मत करो, अभी 9 नहीं बजा है, मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो पहले इसको, देखो देखो फटाफट देखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मुझे पता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो 2 और 2 कट जाएंगे, तो जैसा दिख रहा है ठीक वैसे ही वहां पे आ जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के साथ एक एटम कंबाइन हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा, ठीक है। अब कुल मिला के बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जितना मैग्नीशियम है उतना ही मैग्नीशियम यहाँ पे भी होना चाहिए। LHS में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मैग्नीशियम इन द LHS should be equal to the number of atoms in the RHS of the same element. Same element having the number of atoms in the LHS should be same with the RHS. मैग्नीशियम के केस में तो सेम है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक एटम है, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम के एक एटम का यूज किया है LHS में, तो RHS में भी एक ही एटम का यूज होगा। लेकिन LHS में ऑक्सीजन कितना है? 2, तो RHS में क्या काम कर दूंगा मैं यहाँ पर? अब क्योंकि मुझे यहाँ LHS में ऑक्सीजन 2 है तो RHS में भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। जब मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीशियम 1 था, तो फिर से उसको दोबारा बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। 2 1 जा 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। नाउ दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज अ बैलेंस इक्वेशन। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, बैलेंसिंग मीन्स यू हैव टू मैनेज द नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS